شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام کیبنٹ نے متفقہ طور پہ ان کی درخواست تھی اس کو یکسر مسترد کر دی۔ مریم نواز نہیں بھریں گی بیرون ملک کے لیے اڑان۔ ذیلی کمیٹی کے بعد وفاقی کابینہ کا بھی دو ٹوک اعلان۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں شرکا نے ایک فرد کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مخالفت کی، پہلے بھی عدالت حکم پر ہی نام ای سی ایل سے نکالے گئے۔ بیمار شریف برادران لندن میں کرسمس اور نیو ایئر منا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کو بڑا ریلیف مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے منشیات سمگلنگ کیس میں ضمانت منظور کر لی، 10-10 لاکھ کے مسلکے جمع کرانے کا حکم۔ رانا ثناء اللہ کو 1 جولائی کو فیصل آباد سے لاہور آتے ہوئے موٹر وے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت کا آخری روز، نون لیگ نے ضمانت میں توسیع کے لیے پنجاب حکومت کو درخواست دے دی۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بھی منسلک، فیصلے کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل۔ لندن میں موجود شہباز شریف کے لیے ایک اور مشکل، احتساب عدالت نے آشیانہ اسکینڈل میں 7 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ آخری موقع ہے، آئندہ اپنی حاضری یقینی بنائیں، تحریری حکم نامہ بھی جاری۔ نون لیگ کی سیکرٹری جنرل احسن اقبال احتساب عدالت میں پیش، نارووال اسپورٹس سٹی کیس میں 13 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مشرف کی سزا کی حمایت اور عمران خان کے خلاف بولنے پر گرفتار کیا گیا، یہ اوچھے ہتھ کنڈے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ میں وفادار ہوں تو مجھے یہ سزا قبول ہے، لیکن اگر اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ عمران احمد نیازی کی ناکام حکومت کے خلاف میں بولنے سے چپ کر جاؤں تو پھر یہ سزا قبول نہیں ہے۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر فیصلہ نہ ہو سکا، لاہور ہائی کورٹ نے سماعت 26 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نام ای سی ایل سے نکالنے اور پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر ایک ساتھ ہی سماعت کرے گی۔ شاہد خاقان عباسی کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب، سابق وزیر اعظم کو نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے سابق وزیر اعظم کو اسپتال منتقل کرنے کی سفارش کی تھی۔ شاہد خاقان کی نجی اسپتال میں دوبارہ سرجری کی جائے گی۔ بلاول کی دھمکی قانونی عمل سے نہیں روک سکتی، بلاول کی پریس کانفرنس پر ترجمان نیب کا جواب، کہا بلاول کی نیب میں پیش نہ ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ بلاول نے 15 جنوری کے بعد پیش ہونے کی درخواست کی ہے، چاہتے ہیں کہ متعلقہ شخص کو بیان دینے کے قانونی حق سے محروم نہ رکھا جائے۔ پیپلز پارٹی 27 دسمبر کو لیاقت باغ میں ہی جلسہ کرے گی، لاہور ہائی کورٹ نے جلسے کی اجازت دے دی۔ قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں وزیر اعظم کا رویے سے لگتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے بل کو قومی اسمبلی سے پاس نہیں کروانا چاہتے، اگلا سال الیکشن کا سال بھی قرار دے دیا۔ جو 2020 ہوگا وہ ہوگا پاکستان کا وہ سال جس میں پاکستان ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، اپنی اکانومی ہماری بڑھائے گا، اپنی عوام کے لیے نوکریاں ہم بنائیں گے، اس سسٹم کے اندر نوکریاں پیدا کریں گے۔ 2020 پاکستان کی ترقی کا سال ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، کہا اگلے سال معیشت بڑھے گی، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، کوشش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ملک عظیم اس وقت بنے گا جب حکومت عوام کے لیے کام کرے گی۔ ماہر بین الاقوامی امور معید یوسف وزیر اعظم کے معاون خصوصی تعینات، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، معید یوسف کو قومی سلامتی ڈویژن اور اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ تعینات کیا گیا۔ وزیر اعظم کراچی ضرور آئے، وزیر اعلیٰ موجود ہوئے تو استقبال کریں گے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس،
कहते हैं आईजी सिंध सरकारी मुलाजिम है, सवालात के जवाब देने होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान की तकर्री का मामला फिर लटक गया। हुकूमत और अपोजिशन की 8वीं बैठक भी बेनतीजा। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं उसूली तौर पर बात वहीं रुकी हुई है, उम्मीद है 30 दिसंबर तक किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। FIA ने BRT मंसूबे की तहकीकात शुरू कर दी, रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। FIA को तहकीकात से रोकने की दरख्वास्त कर दी। क्रिसमस आ गई लेकिन मसीही बरादरी को खुशियां ना मिल सकी। पंजाब के सैनिटरी वर्कर्स को आज भी तनख्वाहों की अदायगी ना हो सकी। कल क्रिसमस कैसे मनाएं, गरीब वर्कर्स का सवाल। सैलरीज 2 माह हो गए अभी तक नहीं मिली, क्रिसमस है अभी कैसे हैंडल करेंगे हम? ये नहीं आई तो क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट होगा? बस इनके आस पे बैठे हुए हैं। क्रिसमस की रोशनियों से पाकिस्तान जगमगा उठा। शहर शहर मसीही बरादरी की तैयारियां, कहीं क्रिसमस ट्री सजा तो कहीं बरक़े कुमकुमों ने रोशनियां बिखेरी। क्रिसमस की खुशियों में खवातीन और बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। फैसले की तौसीक कर दी। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि काबीना इजलास में एक फर्द का नाम ECL से निकालने की मुखालफत की गई। पहले भी नाम अदालती हुक्म पर ECL से निकाले गए। शरीफ बरादरान लंदन में क्रिसमस और न्यू ईयर मना रहे हैं। राना सना की जमानत पर शहरियार आफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो रिकमेंडेशन थी सब कमेटी की, 8 नाम जो हैं वो निकाले गए हैं और एक को मुस्तरद किया गया है। इस VIP शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम कैबिनेट ने यकसर मुस्तरद कर दी। पहले भी किसी ने पर्ची से उनका नाम नहीं निकाला था। अदालत ने रिकमेंडेशन की थी कि इनका नाम कैबिनेट जो है ECL से निकाले। वो खुद लंदन के पूरे फजा मकाम वहाँ के क्रिसमस और न्यू ईयर मना रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक हमारे वही मिनिस्टर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनका मौक़िफ़ है वो आपके सामने लाएंगे। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मनशियात स्मगलिंग केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के मसलके जमा कराने का हुक्म भी दिया है। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई को फैसलाबाद से लाहौर आते हुए मोटरवे पर गिरफ्तार किया गया था। नबीला सनाउल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो वकील नज़ीर तारड़ ने केस को सियासी इंतकाम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने मंशियात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह की जमानत 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नबीला सनाउल्लाह का कहना था उनके खामन बेगुनाह थे, उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले दिन से ईमान था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे के सदके अल्लाह मियाँ ने राना सनाउल्लाह को सुरखरू करेगा। राना सनाउल्लाह के वकील आजम नजीर तारड़ का कहना था कि केस में कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, राना सनाउल्लाह जल्द बेगुनाह करार पाएंगे। झूठा केस था, आज हमें फख्र है कि हमारी टीम ने बेहतरीन काम किया और राना सनाउल्लाह को अल्लाह ने इज्जत भी दी, उसको रिहाई भी मिली और इंशाअल्लाह इसी तरह जब क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे, जब मैं जिरा करूंगा आप देखेंगे कि इनके गवाहों के जो है कानूनी बखिया कैसे उधड़ता हूँ। पेशी के मौका पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी अहाता अदालत में मौजूद थी, जिन्होंने राना सनाउल्लाह के हक में नारेबाजी भी की। याद रहे 6 माह कबल राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुकूमती वजीर शहरियार आफरीदी का कहना था कि लीगी रहनुमा के खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद हैं और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं। 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियार आफरीदी ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम चीजें A to Z अदालत में पेश की जाएंगी। अब कोई नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। हमने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हाथ डालना है तो
रोड पे मूवमेंट सबसे मुश्किल काम है और आम गाड़ी में पकड़ी जाती है नाकों पे, लेकिन बड़ा ओहदा, बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, उनको नाकों पे भी नहीं रोका जाता और उनको इजीली वो मूव कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह की रिहाई पर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज का दिन गिरफ्तारियां करने और इदारों को इस्तेमाल करने वालों के लिए गम का दिन है। तर्जुमान ने कहा कि नून लीग के खिलाफ आज तक कोई केस साबित न हो सका। वो लोग जो सियासी इंतकाम में इस तरह के भोंडे झूठे इल्जामात लगाकर गिरफ्तारियां कर रहे थे, आज उनके लिए गम का दिन है। लेकिन जिस वक्त अदालत में सबूत पेश करने होते हैं तो बेगुनाह जैसे राना सनाउल्लाह जैसे लोग रिहा होते हैं, उनको जमानत मिलती है, क्योंकि कानून की अदालत में आज तक कोई भी केस के अंदर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो, कोई केस के अंदर हुकूमत और ये अदारे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है वो सबूत पेश नहीं कर। पीटीआई रहनुमा दिलीप अब्बास कहती है जमानत तो मुजरिम को भी मिल जाती है, राना सनाउल्लाह की तो अभी जमानत हुई है, ट्रायल शुरू होगा तो सबूत अदालत में पेश होगा। 6 माह कबल नहीं हुआ, कुछ जजेस ने इनकार कर दिया। जिस दिन ट्रायल हो और सबूत ना पेश हो तब सवालात उठने चाहिए। अता तारड़ कहते हैं जिस दिन फैसला करना था जज को ही हटा दिया गया। शहरयार आफरीदी कौम नहीं हुआ, कुछ जजेस ने इनकार किया है। जमानत तो यहाँ माशाल्लाह कॉन्विक्ट्स को भी मिलती है। ट्रायल जब शुरू होगा, एविडेंस कोर्ट में पेश होगा, एविडेंस पब्लिक में या मीडिया में पेश नहीं होगा। 6 महीने से ट्रायल नहीं शुरू हुआ, इसमें कुछ जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। हाँ, जिस दिन ट्रायल शुरू हो और एविडेंस ना पेश हो तब एक लीगल ग्राउंड बनती है और सवाल आते हैं। मैं अदालत में मौजूद था और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मैंने अदालत में जज साहब को ये कहते हुए सुना कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है और मुझे हटा दिया गया है, वरना मैंने आज फैसला करना था। शहरयार अफरीदी साहब अल्लाह ताला के हुजूर माफी मांगे दीन इस्लाम का नाम गलत इस्तेमाल करने पे। ओके। नंबर 2, वो कौम से माफी मांगे जो वो कस्में खाते रहे, गलत बयानी फ्लोर ऑफ द हाउस और मीडिया के सामने करते रहे। और नंबर 3, जब तक ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता वो अपनी वजारत से इस्तीफा भी दें। लंदन में ज़ेर इलाज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत का आज आखिरी दिन है। नवाज शरीफ की ज़मानत रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने ज़मानत में तोसी के लिए पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दे दी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ मुंसलिक की गई हैं। पंजाब हुकूमत ने फैसले के लिए वज़ीर क़ानून की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नवाज शरीफ की जमानत की मियाद खत्म होने पर मुस्लिम लीग नून ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त के साथ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाई गई हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लंदन में नवाज शरीफ का इलाज जारी है और वो इस बीमारी के बाइस अभी वतन वापस नहीं आ सकते। नवाज शरीफ के क़याम में मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त पर फैसले के लिए पंजाब हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर कानून पंजाब की सरबराही में बनने वाली कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून भी शामिल है। वाज़ेह है कि अदालत ने नवाज शरीफ को मजीद रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त देने की हिदायत की थी और अदालती फैसले के तहत हुकूमत पंजाब के फैसले तक नवाज शरीफ जमानत पर तसव्वुर होंगे। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त मिल गई, मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लगाई गई है। मेडिकल रिपोर्ट्स मुल्की और गैर मुल्की इदारों की जारी करदा है। राना सनाउल्लाह की जमानत पर अदालत ने जो फैसला बेहतर समझा वो कर दिया। दरख्वास्त उन्होंने होम डिपार्टमेंट को दी है और होम डिपार्टमेंट के पास दरख्वास्त पहुंच गई है और अभी उन्होंने उस पर गौर करने के बाद कोई फैसला करना है। लेकिन सिर्फ फिलहाल इतना है कि उन्होंने एक दरख्वास्त। सर ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ ने कुछ साथ मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी लगाई हैं? जी, उन्होंने नई मेडिकल रिपोर्ट्स वो वहाँ की हैं, एक कुछ वहाँ की है कुछ यहाँ की है, लेकिन अभी इस सिलसिले पे फैसला होना है। अच्छा सर ये बताइए, राना सनाउल्लाह की जमानत हुई है, हुकूमत का मौक़िफ़ था कि उनके पास बहुत सबूत है, जबकि आज अदालत में कि वो अदालत का फैसला है। हुकूमत ने या जो भी तफ्तीशी अदारा है उसने अपने सबूत दिए होंगे, आगे ये अदालत का काम है कि उनको तस्लीम। एहतसाब अदालत ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल का 13 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। एहसन इकबाल को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया, उन्हें गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया। एहतसाब अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। एहसन इकबाल ने एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नैब इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उन्हें परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा की हिमायत करने, इमरान खान के खिलाफ बोलने और नवाज शरीफ से वफादारी पर गिरफ्तार किया गया।
नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ मैं वफादार हूँ तो मुझे ये सज़ा कबूल है, लेकिन अगर इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि इमरान अहमद न्याजी की नाकाम हुकूमत के खिलाफ मैं बोलने से चुप कर जाऊँ तो फिर ये सज़ा कबूल नहीं है। जाली अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो तलबी के बावजूद नैब में पेश न हुए। तर्जुमान नैब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने खत लिखकर 15 जनवरी के बाद पेश होने की यकीन दहानी कराई है। नैब तहकीकात के लिए मुतल्लिका शख्स का बयान लेने पर यकीन रखता है। तर्जुमान नैब की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो की धमकी कानूनी अमल से नहीं रोक सकती। नैब बदनवानी के खात्मे के लिए काम करने वाला इदारा है। नैब तहकीकात के लिए मुतल्लिका शख्स का बयान लेने पर यकीन रखता है। तर्जुमान नैब ने कहा कि जाली अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो तलबी के बावजूद नैब में पेश न हुए। उन्होंने पेश होने के लिए 15 जनवरी तक मोहलत मांग ली है। बिलावल भुट्टो ने खत लिखकर 15 जनवरी के बाद पेश होने की यकीन दहानी कराई। बिलावल भुट्टो का बयान नैब को लिखे गए खत के बरखिलाफ है। तर्जुमान नैब का कहना था कि नैब मुतल्लिका शख्स को कानूनी हक से महरूम नहीं करता। नैब इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करने पर यकीन रखता है। पीपल्स पार्टी को लियाकत बाग में जलसा करने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मंजूर की। कमर ज़मान कायरा ने 2020 में इलेक्शन की पेशगोई कर दी। उन्होंने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान आने और मरियम नवाज को चुप का रोज़ा तोड़ने का मशवरा भी दिया। उस्मान मुजफ्फर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस तारिक अब्बासी ने 27 दिसंबर को लियाकत बाग में इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जलसा करने की इजाजत दे दी। कमरुज़्ज़मा कायरा ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जलसा करना हमारा आईनी हक है। इंतजामिया कहती है इजाजत नहीं। मुल्क आईनी और माशी बुरहान का शिकार है और हुकूमत किरदार कुशी कराने में मसरूफ है। वो हमें जलसे से रोकना चाहते हैं। हम अदालत गए, हम मशकूर है अदालत के। आइन हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम जलसे करें। उन्होंने 2020 को इलेक्शन का साल करार देते हुए शहबाज शरीफ को पाकिस्तान आने और मरियम नवाज को चुप का रोजा तोड़ने का मशवरा भी दे डाला। आज पाकिस्तान भी लीडर ऑफ द अपोजिशन को डिमांड कर रहा है, हालात भी ये डिमांड कर रहे हैं कि वो वापस आके पाकिस्तान में अपनी करे, और मरियम बीबी से भी हमें गुजारिश है कि अब वो भी अपने चुप का रोजा तोड़े। कमरुज़्ज़मा कायरा का कहना था कि वजीर आज़म का रवैया लगता है वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बिल को कौमी असम्बली से पास करवाना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी मुशर्रफ और न ही जजेस के साथ है, वो आइन और कानून के साथ खड़ी है। उस्मान मुजफ्फर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन एक बार फिर रडार पर आ गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक मैचेस में बॉलिंग करने पर पाबंदी लगा दी। मिडिलसेक्स काउंटी का हिस्सा हफीज का बॉलिंग एक्शन रवां बरस T20 ब्लास्ट के दौरान रिपोर्ट हुआ था। मोहम्मद हफीज ने रिव्यू ग्रुप के फैसले को तस्लीम किया था और ICC से मंजूर शुदा किसी भी सेंटर में एक्शन की जांच पड़ताल के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2020 को पाकिस्तान की तरक्की का साल करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि अगले साल मईशत बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मुल्क अजीम उस वक्त बनेगा जब हुकूमत आवाम के लिए काम करे। जो 2020 होगा वो होगा पाकिस्तान का वो साल जिसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, अपनी इकॉनमी हमारी बढ़ाएगा, अपनी आवाम के लिए नौकरियां हम बनाएंगे। इस सिस्टम के अंदर नौकरियां पैदा करेंगे। तो मैं अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टर से ये पूछता हूँ हर हफ्ते कि कोई ऐसी चीज बताओ कि अपनी मिनिस्ट्री में आप करें जिसमें एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर हो। जब हुकूमत में आते हैं हम अपनी खिदमत करने नहीं आते, हम अपने अवाम की खिदमत करने आते हैं। अब अवाम को पता चलेगा कि हुकूमत उनकी खिदमत करने के लिए ये जो स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे मुल्क के लिए, आप देखेंगे कि चेंज कितनी तेजी से बढ़ता जाएगा। जिक्र करेंगे भारत का शहरियत कानून के खिलाफ भारतीय तालबा का अनोखा एहतजाज, गोल्ड मेडल ठुकरा दिया।